बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या कहते हैं, प्री बजट के अगले सेशन की तरफ क्या कहते जा रहे हैं और उसमें हम बेसिकली बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग द इम्पोजिशन ऑफ वेल्थ टैक्स कॉल्ड द इनकम सुपर लेवी on all assets including agriculture. So basically this is the government is going to impose, and this measure could become its larger revenue generation in the next financial year and has the potential to raise up to 200 billion rupees. It is learned from the sources that the government may introduce a levy on federal tax on all type of assets. Even though the final tax rate not yet been determined, unlike the income tax, the collection from the levy will remain the federal kitty and will not be shared with the province. And the Ministry of Finance is expected to present the bill in the Parliament instead of Revenue Division. The bill will require to approval of the National Assembly and the Senate. Based on the rate and the assets chosen for taxation, the government estimate an additional tax revenue of 25 billion to 200 billion, and this could make it the largest revenue generation measure. Another thing is that the government does not plan to withdraw super tax, which is levied up to 10% on individual and companies' income. Instead, the income support levy is being considered to be charged on individual and companies based on their assets. तो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि पहले गवर्नमेंट सुपर टैक्स क्या कहते हैं लगा चुकी है इंडिविजुअल और कंपनीज की इनकम के ऊपर, एंड नाउ इस गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग टू लेवी वेल्थ टैक्स, और इसका जो प्रॉब्ली नाम होगा इस टैक्स का, वो नाम होगा कोई लेवी होगा, कोई इनकम लेवी टाइप की चीज़ इसका होगी, और ये बेसिकली तमाम टाइप ऑफ एसेट्स के ऊपर क्या कहते हैं लगाया जाएगा। और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इससे इसको 25 से 200 बिलियन तक की एडिशनल रेवेन्यू होगा, और गवर्नमेंट समझ रही है कि ये जो है एक बड़ा रेवेन्यू होगा मेजर। अब इसके अंदर क्या कहते हैं मसला बेसिकली ये है कि फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर द गवर्नमेंट इज considering a tax collection target of 9.2 trillion, as we have discussed in our previous videos, for the Federal Board of Revenue, which would require at least 28% growth rate compared to this year expected collection of around 7.2 trillion. तो अब जो ये टैक्स क्या कहते लगाया जा रहा है वेल्थ टैक्स, इसमें जो थ्रेशोल्ड होगा, तो द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोजल will depend on the nature of the assets, exemption threshold, and the rate chosen. The FBR recommended rates ranging from 0.25% to 2%, and the exemption thresholds of 50 million to 100 million in the assets. यानी FBR जो रेट सजेस्ट कर रहा है वो 0.25 से 2% के दरमियान कर रहा है, और एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड जो एक्सपेक्टेड है वो 50 मिलियन से 100 मिलियन के दरमियान है। इनकम सपोर्ट लेवी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार in 2013, but struck down by the Supreme Court bench held that, or the bench led was by Justice Qais Faiz Isa, or they held the decision for the multiple reasons. In 2013, around 581 petitioners challenged income support levy. The levy was imposed at a rate of 0.5% on mobile assets to provide financial assistance and other social protection measures to economically distressed individuals and families.
The Supreme Court ruled that the levy has been imposed through Finance Act 2013, even though it did not meet the requirement of money bill as outlined in Article 73 subsection 2 of the Constitution. Then an ordinary legislation, any money bill, should have been sent to the Senate for voting, but this was not done. यानी पहले ये मनी इसके तहत लाया गया था, फाइनेंस बिल के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं इसको एतराज़ किया कि ये फाइनेंस एक्ट के थ्रू क्या कहते हैं नहीं आ सकता है, मनी बिल के अगेंस्ट नहीं आ सकता है, इट इज़ अगेंस्ट दी कॉस्ट आर्टिकल 73 सब सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद क्या कहते हैं इसको एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू सेनेट से क्या कहते हैं वोटिंग कराने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ नहीं। Although the previously imposed levy aimed to provide financial assistance and implement social protection and safety net for economically distressed individuals and families, neither the act nor income support levy rule nor the income support levy rule established an income support fund or mandated that the amendment collected be used especially for poverty alleviation objects। यानी कि बेसिकली इसमें हमेशा गवर्नमेंट कहती रहती है कि जी हम इसको एक इनकम डिस्ट्रेस्ड और इस तरह के लोगों के लिए क्या कहते हैं हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं उसको उस फंड के लिए फुल यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर क्या कहते हैं नहीं है, और जो सजेशन गवर्नमेंट ने दी है तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है पोजीशन ऑफ वेल्थ टैक्स कॉल्ड द इनकम सपोर्ट लेवी ऑन ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। और गवर्नमेंट का कहना है कि दिस मेजर कुड बिकम द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और गवर्नमेंट अब ये भी कहती है कि दिस हैज़ पोटेंशियल टू रेज अप टू 200 बिलियन रेवेन्यू। लेकिन हम इस फोरम से गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे गवर्नमेंट जो है वेल्थ टैक्स को इम्पोज ना करे, वेल्थ टैक्स के ऊपर टैक्स इम्पोज ना करे। इसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है किसी भी इंडिविजुअल की या कंपनी की इनकम अगर होती है तो इनकम क्या कहते हैं ऑलरेडी पहले ही टैक्स हो जाती है। अब टैक्स के नतीजे में क्या कहते हैं जो उसके बाद अमाउंट बचता है स्पेंड करने के लिए, अब जो चीज़ वो परचेज़ करने के लिए जाता है उस पर वो टैक्स पे कर रहा होता है। इवन अगर वो कंस्ट्रक्शन करता है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे भी टैक्स पे करता है, ज़मीन ख़रीदने पर टैक्स पे करता है, प्रॉपर्टी बन जाती है प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है। उसके ऊपर फिर वेल्थ टैक्स लगा देना ये शायद क्या कहते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू को तो इतना इंक्रीज़ नहीं कर रही जितना क्या कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेक्ट क्या कहते कर रही है, लेकिन ये जो है वो लोगों को डिस्करेज करेगा अपने एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या कहते कम हो जाएंगी। रियल इस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन के अंदर पर्टिकुलरली जो लाइट जो सेक्टर्स हैं, स्टील है, सीमेंट है, मार्बल है, इन सब में क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहते हैं कम हो जाएगी। और उसके अलावा क्या कहते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उनको इनकरेजमेंट क्या कहते हैं मिलेगी कि उन्होंने अपनी जो एसेट्स हैं उनको उन्होंने अपने उससे बाहर रखा हुआ है मेन स्ट्रीम से, और वो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। और जो लोग बेचारे ऑलरेडी अपनी प्रॉपर डिस्क्लोजर क्या कहते कर रहे हैं वो ही क्या कहते फंसेंगे, और जो नए लोग जो होंगे जो अपने नए एसेट्स को क्या कहते हैं वेल्थ इस स्ट्रीम में ऑफिशियल स्ट्रीम में लाना होगा, वो भी फिर इसको क्या कहते हैं अवॉइड करने के लिए नए नए तरीके ढूंढेंगे। गवर्नमेंट वैसे भी स्मगलिंग को और जो पैरेलल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है। तो हमारी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट जो है बजाय इसके कि एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर टैक्स ओवर टैक्स क्या कहते हैं बढ़ाए और उन पर ऊपर क्या कहते हैं बर्डन क्या कहते हैं बढ़ाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मगलिंग को कर्ब करे, टैक्स रेट को रिड्यूस करे, स्मॉल स्केल जो एंटिटीज़ हैं उनको इंसेंटिव्स दे, और ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या कहते हैं जनरेट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो टैक्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा कलेक्ट होगा, और इस तरह के मेजर्स जो है वो सही नहीं है। तो हम इस वेल्थ टैक्स पे टैक्स इनकम सपोर्ट लेवी जो गवर्नमेंट इम्पोज करने जा रही है, हम ये प्रपोजल देंगे कि जी इसको गवर्नमेंट इम्पोज ना करें। थैंक यू वेरी मच।